السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلافت سے ملوکیت تک، قسط نمبر 18۔ زیاد بن ابی، جسے اکثر زیاد بن سمیہ بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ میں نہایت متنازع اور اہم کردار کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس کی ماں کا نام سمیہ تھا، جو ثقفی قبیلے کے ایک غلام حارث بن قلادہ کی لونڈی تھی۔ اسی وجہ سے اسے کبھی زیاد بن سمیہ اور کبھی زیاد بن ابی کہا جاتا ہے۔ اس کے والد کے بارے میں اختلاف رہا۔ بعض کے نزدیک وہ عبید نامی غلام کا بیٹا تھا، جبکہ بعض روایات کے مطابق ابو سفیان نے اپنی جوانی میں سمیہ سے تعلق قائم کیا تھا اور اسی نسبت سے بعد میں معاویہ نے اسے اپنا بھائی بنا کر زیاد بن ابی سفیان قرار دیا۔ مگر یہ بات حضرت علی اور اکابر صحابہ کے نزدیک ناقابل قبول تھی، کیونکہ ولد الزنا کو شرعی طور پر کسی باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابن کثیر البدایہ و نہایہ جلد 8 صفحہ 58، ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 404۔ زیاد بچپن ہی سے ذہین، فصیح اور حساب دان مشہور تھا۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان دونوں نے اس کی ذہانت اور فصاحت کی تعریف کی اور اسے سرکاری حسابات میں استعمال کیا۔ اس کی صلاحیتیں خاص طور پر مالی اور انتظامی امور میں نمایاں ہوئیں۔ ابن خلدون تاریخ، ابن خلدون جلد 2 صفحہ 595۔ حضرت علی کی خلافت کے قیام کے بعد زیاد ان کے ساتھ شامل ہوا اور اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی نے اسے فارس کا عامل مقرر کیا، جو تقریباً 36 یا 37 ہجری میں ہوا۔ زیاد نے فارس میں علی کی خلافت کو استحکام بخشا اور نہایت مضبوطی سے انتظام سنبھالا۔ ابن جریر طبری تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 508۔ حضرت علی کو اس پر اتنا اعتماد تھا کہ فرمایا، زیاد ہمارے اہل بیت میں سے ایک ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو عراق کے اکثر معاملات بگڑ جاتے۔ ابن سعد طبقات جلد 6 صفحہ 118۔ علی نے اسے مالی حسابات اور عدالتی فیصلوں میں بھی غیر معمولی اختیار دیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد زیاد کچھ عرصہ حضرت حسن کے ساتھ رہا، لیکن جب خلافت معاویہ کے پاس آئی تو اس نے شروع میں بیعت سے انکار کیا اور علی کی پالیسی پر قائم رہا۔ بعد ازاں معاویہ نے چالاکی سے اسے اپنی طرف مائل کر لیا اور اسے بھائی قرار دے کر زیاد بن ابی سفیان کہا، ساتھ ہی اسے بصرہ اور کوفہ دونوں کا گورنر مقرر کیا، جس سے معاویہ کو نہایت بڑا سیاسی و انتظامی فائدہ ہوا۔ ابن کثیر البدایہ و نہایہ جلد 8 صفحہ 63۔ یوں زیاد بن ابی ایک ذی فہم، فصیح اور ذہین شخصیت تھی، جس کا نسب ہمیشہ متنازع رہا۔ حضرت علی کے دور میں وہ ان کے بڑے قریبی ساتھیوں میں شامل تھا اور عراق کے استحکام میں اس کا کردار غیر معمولی رہا، مگر بعد میں معاویہ کی سیاسی تدبیر نے اسے اپنے کیمپ میں شامل کر لیا اور اس سے خلافت امیہ کو زبردست سہارا ملا۔ جب حضرت علی نے زیاد بن ابی کو فارس کا گورنر بنایا اور وہ نہایت کامیابی سے وہاں کے معاملات چلا رہا تھا، تو معاویہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ عراق اور اس کے اطراف کے علاقے علی کے کنٹرول میں مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ اسی وقت معاویہ نے زیاد کو ایک خط لکھا اور پیشکش کی کہ اگر وہ علی کو چھوڑ کر اس کا ساتھ دے تو وہ اسے شام اور عراق دونوں کی بڑی حکومتیں دے دے گا۔ بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ معاویہ نے کہا کہ میں تجھے اپنا بھائی تسلیم کر لوں گا، یعنی ابو سفیان کی طرف نسبت دے کر اس کا نسب بدل دے گا۔ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 508، بلازری انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ 147۔ زیاد نے حضرت علی کو یہ خط دکھایا اور ان سے مشورہ لیا۔ حضرت علی نے اسے سخت تاکید کی کہ اپنی ذمہ داری پر قائم رہے اور کسی دھوکے میں نہ آئے۔ زیاد نے معاویہ کو جواب میں سخت انکار کیا اور کہا، میں امیر المومنین علی کا متی ہوں اور ان کی اطاعت سے کبھی الگ نہیں ہوں گا۔ ابن سعد طبقات جلد 6 صفحہ 118۔ حضرت علی نے اس وفاداری پر خوش ہو کر فرمایا، زیاد ہمارے بہترین ساتھیوں میں سے ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو عراق کے بہت سے حصے بگڑ جاتے۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد 16 صفحہ 147۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کے دوران ہی زیاد کو لالچ دے کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس وقت کامیاب نہ ہو سکا اور زیاد مکمل طور پر علی کے ساتھ وفاداری پر قائم رہا۔ البتہ بعد میں جب حضرت علی کی شہادت ہوئی اور حضرت حسن نے صلح کر لی تو معاویہ نے نئے طریقے سے اسے توڑ لیا اور لحاق کے نسب یعنی زیاد بن ابی سفیان بنانے کا کھیل کھیلا، جس کی تفصیل اپنی جگہ بیان کی جائے گی۔ حضرت علی کے دور خلافت میں معاویہ نے صرف زیاد بن ابی ہی نہیں بلکہ کئی اور گورنروں اور سرداروں کو بھی رشوت اور دنیاوی لالچ دے کر اپنی طرف کرنے کی کوشش کی، جس کی تفصیل مورخین نے بیان کی ہے۔
इसी तरह कैस बिन साद बिन उबादा जो मिस्र के गवर्नर थे और निहायत बहादुर व साबित कदम सहाबी थे, उनको मुआविया ने लिखा कि अगर वो अली को छोड़ दें तो उन्हें मिस्र ही का नहीं बल्कि पूरे शाम का गवर्नर बना देगा। लेकिन कैस ने जवाब में कहा, अल्लाह की कसम मैं कभी अली को नहीं छोड़ सकता। इब्न कुतैबा अल अमामा व सियासत जिल्द 1 सफ़ा 135, तबरी जिल्द 4 सफ़ा 505। इब्न अब्बास जो बसरा के गवर्नर थे और हजरत अली के करीबी साथी थे, उन्हें भी मुआविया ने खत लिखा कि अगर वो अली को छोड़कर उसके साथ आ जाएं तो वो उन्हें इराक की हुकूमत और बैतुल माल से कसीर अतियात देगा। मगर इब्न अब्बास ने सख्त जवाब देते हुए कहा, तू चाहता है कि मैं अपने कजन अली को छोड़ दूं और तेरे साथ हो जाऊं? अल्लाह की कसम ये कभी नहीं हो सकता। इब्न अबिल हदीद शरह नहजुल बलागा जिल्द 16 सफ़ा 136। अबू मूसा अशअरी जो इब्तिदा में कोफा के गवर्नर थे, अपनी नर्म मिजाजी और कमजोरी की वजह से मुआविया के खुतूत से मुतासिर हुए। उन्होंने खुलेआम मुआविया की हिमायत तो नहीं की, लेकिन उनकी ढीला रवि बाद में सिफ़ीन और तहकीम में अली के लिए नुकसानदेह साबित हुई। बलाजरी अंसाबुल अशराफ जिल्द 3 सफ़ा 156। अलावा अजीम मुआविया ने सिर्फ गवर्नरों ही को नहीं बल्कि इराक व बसरा के कबायली सरदारों को भी सोने, कपड़े और जमीनों के वादे देकर अपनी तरफ करने की कोशिश की। और मौरखैन जैसे इब्न असीर और तबरी लिखते हैं कि मुआविया का सबसे बड़ा हथियार माल था, जिसे वो खुलेआम इस्तेमाल करते थे। इब्न असीर अल कामिल फित तारीख जिल्द 3 सफ़ा 222, तबरी जिल्द 4 सफ़ा 512। इस तरह यह बात वाज़ेह होती है कि मुआविया ने मुख्तलिफ गवर्नरों को रिश्वत और ओहदे की लालच देकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वफादार साथी जैसे ज़ैद बिन अबी, कैस बिन साद और इब्न अब्बास अपने इमाम के साथ डटे रहे। जबकि अबू मूसा अशअरी की कमजोरी अली के लिए मुश्किलात का बाइस बनी और ये सियासत व माल के जरिए लोगों को खरीदने का तरीका बाद में मुआविया की हिकमत अमली का बुनियादी हिस्सा बन गया। हजरत अली की माली पॉलिसी की बुनियाद अदल और मसावत पर थी। खिलाफत संभालते ही उन्होंने ऐलान किया कि अल्लाह का माल अल्लाह के बंदों में बराबर तकसीम होगा। किसी अरबी को अजमी पर, किसी कुरैशी को गैर कुरैशी पर और किसी अमीर को गरीब पर कोई फौकियत नहीं होगी। नहजुल बलागा खुतबा 15। बैतुल माल की तकसीम में हर शख्स को मसावा हिस्सा दिया जाता, चाहे वो मुहाजिर हो या अंसार, अरब हो या गैर अरब। हत्ता कि अपने भाई अकील को भी उन्होंने बैतुल माल से ज्यादा देने से इनकार किया। और जब अकील ने इसरार किया तो हजरत अली ने लोहा गर्म करके करीब किया और फरमाया, ऐ अकील, तो दुनियावी आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर मुझे जहन्नम की आग की तरफ क्यों ढकेलता है। नहजुल बलागा खुतबा 224। हजरत अली का तर्ज अमल ये था कि जब बैतुल माल में सोना और चांदी जमा होता तो सबको बुलाकर बराबर तकसीम करते और फरमाते, ये तुम्हारा हक है, जो बचता है वो वापस बैतुल माल में जाएगा। तारीख तबरी जिल्द 4 सफ़ा 435। इसके बरक्स मुआविया की माली पॉलिसी सियासत और रिश्वत पर मबनी थी। वो कबायली सरदारों को ज्यादा माल देते ताकि वो अपने कौम को उसके साथ मिला लें। इब्न असीर अल कामिल जिल्द 3 सफ़ा 223। वो अरब और खास तौर पर कुरैशी सरदारों को गैर अरब पर तरजीह देते थे और उनकी वफादारी माल के जरिए खरीदता। इसी तरह उसने ज़ैद बिन अबी, इब्न अब्बास और कैस बिन साद को हुकूमतें देने की पेशकश की और बैतुल माल को अपनी सियासत के आले के तौर पर इस्तेमाल किया। यही वजह है कि बाद में यजीद को वली अहद बनाने के लिए भी माल खर्च किया गया। अल अमामा व सियासत जिल्द 1 सफ़ा 143। इस तरह हजरत अली और मुआविया की माली पॉलिसी में बुनियादी फर्क ये था कि हजरत अली का निज़ाम अदल, मसावत और शफाफियत पर कायम था, जबकि मुआविया का निज़ाम सियासत, रिश्वत और कबायली वफादारियों को खरीदने पर मबनी था। इसी फर्क की वजह से हजरत अली के साथी उनसे वफादार रहे, मगर कबाइल की अक्सरियत धीरे धीरे मुआविया की तरफ झुकने लगी क्योंकि दुनिया उनके दिलों में लुभा रही थी। तारीख के मौत पर मार्क्सात में ये वाक़या मिलता है कि जब हजरत अली ने अपने भाई अकील बिन अबी तालिब को बैतुल माल से ज्यादा देने से इनकार किया तो वो सख्त नाला हो गए और उसी नाराजगी से फायदा उठाने के लिए मुआविया ने उन्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। अकील जब हजरत अली से ज्यादा माल न पा सके तो शाम गए। वहाँ मुआविया ने उनकी बड़ी इज्जत की और कसीर माल व दौलत पेश किया ताकि उन्हें अपनी तरफ ले आए। इब्न कुतैबा अल अमामा व सियासत जिल्द 1 सफ़ा 144। हजरत अली ने इस मौके पर सख्ती से उसूली मौक़िफ़ अपनाते हुए फरमाया, ये माल मेरा जाती नहीं है कि मैं इसे जिसे चाहूं दे दूं, ये सब मुसलमानों का है। नहजुल बलागा खुतबा 224।
अकील कुछ अरसा मुआविया के पास रहे और उनकी मजलिसों में भी शरीक होते, हत्ता कि बाज़ रिवायात के मुताबिक मुआविया उनसे मज़ाहिया अशार और लतीफ़े कहलवाते और अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते। इब्न असीर अल कामिल फी तारीख जिल्द 3 सफ़ा 224। मुआविया ने अकील को सिर्फ माली अतियात ही नहीं दिए बल्कि उनके खानदान के लिए भी खास वजीफा मुकर्रर किया। ये वाक़या दरअसल हज़रत अली और मुआविया की माली पॉलिसी के फ़र्क को वाज़े करता है कि हज़रत अली उसूल पर डटे रहे और करीबी रिश्तेदार के लिए भी अदल में कमी न की, जबकि मुआविया सियासी मसलहत के लिए माल खर्च करने में कोई झिझक महसूस नहीं करते थे। हज़रत अली के करीबी रिश्तेदारों में से अकील बिन अबी तालिब ही वो शख्स थे जो आखिरकार मुकम्मल तौर पर मुआविया की तरफ झुक गए, और ये एक तारीखी हकीकत है जिसे मुहद्दिसीन व मौरखीन दोनों ने जिक्र किया है। हज़रत अली के दौर में सबसे ज्यादा कबाइल एतमाद और पक्के साथियों में अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, और यही वजह थी कि मुआविया ने उन्हें खरीदने की बड़ी कोशिश की मगर वो नाकाम हुए। इब्ने अब्बास बसरा के गवर्नर थे और एक मौके पर उन पर बैतुल माल के इस्तेमाल का इल्जाम भी लगा, लेकिन उन्होंने हजरत अली के सामने वजाहत की और अली ने उन पर एतमाद बरकरार रखा। इब्ने असीर अल कामिल जिल्द 3 सफ़ा 231। मौरखीन का कहना है कि अगर इब्ने अब्बास जैसी शख्सियत मुआविया के साथ शामिल हो जाती तो उसकी पोजीशन बहुत मजबूत हो जाती, लेकिन इब्ने अब्बास ने आखिर दम तक अली का साथ दिया और अपने इल्म बसीरत से उनकी मदद करते रहे। इब्ने खल्दून तारीख जिल्द 3। इस तरह यह वाज़ेह होता है कि जहां अकील लालच की वजह से मुआविया के करीब हो गए, वहीं इब्ने अब्बास ने दुनियावी फायदों को ठुकराकर अली की हिमायत जारी रखी। तारीखी रिवायत से पता चलता है कि मुआविया ने हजरत अली के गवर्नरों और करीबी ओहदेदारों को भी खुतूत और माली लालच के जरिए अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की ताकि उनकी ताकत को कमजोर किया जा सके। कद्दामा बिन अब्बास जो बसरा के मामलात में शरीक थे, उनको मुआविया ने खत लिखा और वादा किया कि अगर वो उसके साथ शामिल हो जाएं तो उन्हें बसरा बल्कि फारिस तक का गवर्नर बना दिया जाएगा, मगर उन्होंने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। अल-अमामा व सियासा इब्ने कुतैबा जिल्द 1 सफ़ा 150। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर को भी मुआविया ने कुरैश के बड़े घराने से हिमायत हासिल करने के लिए साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा सियासत और इक्तिताल से किनारा कशी इख्तियार की और किसी तरफ न गए। इब्ने असीर अल कामिल जिल्द 3। इस तरह मजमूई तौर पर देखा जाए तो अगरचे कुछ शख्सियत जैसे अबू मूसा अशरी और अशअस बिन कैस अपनी कमजोरी या मसलहत की बिना पर बिलवास्ता मुआविया के लिए मुफीद साबित हुई, लेकिन ज्यादातर गवर्नरों और करीबी शख्सियत जैसे इब्ने अब्बास और कद्दामा ने अली के साथ डटे रहकर मुआविया की ये हिकमत अमली नाकाम बना दी। अशअस बिन कैस कंदी यमन के एक बड़े कबीले का सरदार था जिसने इब्तिदा में मानैन ज़कात की जंगों में बगावत की, फिर तौबा करके वापस आया और बाद में कोफा में असर व रसूख हासिल किया। हजरत उस्मान के दौर में भी वो एक नुमाया शख्सियत था, और जब हजरत अली ने दारुल खिलाफा कोफा मुंतकिल किया तो अशअस वहां एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर मौजूद था। अली ने हालात की नज़ाकत के पेश नज़र उसे बज़ाहिर इज्जत दी ताकि कोफा के कबाइल काबू में रहें, मगर जंग सिफ़ीन में अशअस का किरदार निहायत मुतनाज़्ज़ा रहा। जब कुरान नेज़ों पर उठाया गया तो सबसे ज्यादा जोर अशअस और उसके कबीले की तरफ से आया कि अली लड़ाई बंद करें और तहकीम कबूल करें, और उसने लश्कर में जोर व शोर से कहा कि अगर अल्लाह की किताब की तरफ बुलाने वाले को रद्द किया गया तो हम आपके खिलाफ भी वैसा ही करेंगे जैसे शाम वालों के खिलाफ कर रहे हैं। इसी दबाव के नतीजे में अली को तहकीम पर मजबूर होना पड़ा। मजीद बड़ा अशअस ने ही अबू मूसा अशरी को सालिस बनाने पर जोर दिया। हालांकि अली का रुझान इब्ने अब्बास या मालिक अश्तर जैसे मुखलिस अफराद की तरफ था। उसके इस तर्ज अमल ने अली को सियासी तौर पर कमजोर कर दिया। बाज़ रिवायात से पता चलता है कि अशअस अंदरूनी तौर पर मुआविया से भी मुलाकात रखता था और अपनी वफादारी के बजाय हमेशा अपनी जाती और कबायली मफाद को तरजीह देता रहा। इसलिए अगरचे बज़ाहिर वो अली के लश्कर में शामिल था, लेकिन अमली तौर पर उसने उनके लिए बार बार मुश्किलात पैदा की। यही वजह है कि मुर्रखीन और मुहद्दिसीन ने उसे एक मुनाफिकाना मिजाज रखने वाला फितना परवस सियासतदां करार दिया है, जिसके किरदार ने हजरत अली के काफिले को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हजरत अली के लश्कर में जहां एक तरफ मुखलिस और जानिसार साथी थे, वहीं कुछ ऐसे अफराद भी मौजूद थे जिनकी कमजोरी या मौके परस्ती ने उनकी पोजीशन को कमजोर किया। अबू मूसा अशरी गवर्नर कोफा थे और उनकी तबीयत नरम और सुलह जो थी, इसी वजह से वो जंग जमल में भी शरीक न हुए।
और दूसरों को भी रोकते रहे। जंग सिफ़ीन के मौके पर जब हजरत अली ने अब्दुल्ला बिन अब्बास या मालिक अश्तर को सालिस बनाना चाहा तो अशज बिन कैस और उसके हामियों ने जोर देकर अबू मूसा अशरी को मुकर्रर करवाया, जिसकी कमजोरी और नाअहली ने तहकीम में अली के लश्कर को सख्त नुकसान पहुंचाया और वो अम्र बिन आस की चाल में आ गए। काका बिन अम्र तैमी अपनी बहादुरी के बावजूद हमेशा सुलह की तरफ माइल रहे। जंग जमल और सिफ़ीन दोनों में उन्होंने लड़ाई रोकने की राय दी, जिससे अमली तौर पर अली की कुव्वत कमजोर हुई। अशज बिन कैस कंदी का किरदार तो सबसे ज्यादा मुतनाज़ा रहा, क्योंकि कुरान नेज़ों पर उठाने पर सबसे ज्यादा जोर उसी ने दिया और अबू मूसा को सालिस बनाने पर भी इसरार किया, जबकि बाज़ रिवायात के मुताबिक वह खुफिया तौर पर मुआविया से खत व किताबत करता रहा। इसी तरह हजरत अली के लश्कर में एक तरफ मालिक अश्तर, अम्मार बिन यासिर, मोहम्मद बिन अबी बकरे और इब्ने अब्बास जैसे जानिसार मौजूद थे, तो दूसरी तरफ अबू मूसा अशरी, असअद बिन कैस और कुछ कबाइली सरदार ऐसे भी थे जिनकी कमजोरी या जाती मुफाद पसंदी ने अली के लिए सबसे बड़ी रुकावट पैदा की। अगली किस्त में आप सुनेंगे हजरत अली की खिलाफत के ज़माने में मुआविया ने सिर्फ सियासी चालों और लालच पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि अपने मुखालिफ इलाकों में खौफ व हिरास फैलाने के लिए फौजी मुहिम्मात भी भेजी। उन्हीं मुहिम्मात में सबसे मशहूर और बदनाम बुसर बिन अरतात था, जिसे तकरीबन 37 हिजरी के करीब एक बड़ी फौज देकर हिजाज और यमन की तरफ रवाना किया गया। मदीना मुनव्वरा में उसने अली के हामियों को कत्ल और खौफजदा किया, मक्का में उनके हिमायती खानदानों को दबाव में रखा और यमन पहुंचकर गवर्नर उबैदुल्ला बिन अब्बास की गैर मौजूदगी में उनके 2 कमसिन बेटों को बेदर्दी से कत्ल कर डाला।